آتش نگی بجھ گئی ہے یہ پی کر شہادت کا. سب لوگ بولو، سب لوگ بولو. اس رات میں ہم لوگ حسین کی محبت میں آئیں. یا اللہ ہم گنہگاروں کو حسین کے صدقے میں معاف کر. آمین بول دو، آمین بول دو. پتہ ہے جب علی اصغر خیمے میں گیا نا، تہاڑیں اللہ اللہ یار کون نہیں روتا. چھوٹا سا بچہ، میں خود باپ ہوں اور آپ میں سے جو باپ ہو سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ طبیعت خراب ہو جائے کسی بچے کی، رات میں 12 بج رہے ہوں اور سردی کا موسم ہو، باپ سے اپنے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. ویسے نہیں نکلتا ہے مگر بیٹے کی محبت میں یا چھوٹے سے بچے کی محبت میں نکل جاتا ہے، اس سے دیکھا نہیں جاتا. اور ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتا ہے، بچہ تڑپ رہا، ڈاکٹر صاحب چاہے ایمرجنسی میں دیکھ لو چاہے کیسے دیکھ لو مگر میرے بچے کو دیکھ لو ورنہ میرا بچہ مر جائے گا. ہاتھ جوڑتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہندو ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو دیکھ لو. ذرا سوچو تو صحیح حسین کے کلیجے پہ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی جب چھوٹے سے اصغر کے حلقوم میں تیر لگا ہوگا. یا اللہ تیری مرضی ہے، میرا 6 مہینے کا یہ بچہ اگر تجھے مقبول ہے مولا، مجھے فکر نہیں ہے مولا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی قبول فرما لے. ذرا سوچو ان کی ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جب یہاں پہ لے کے آئی تھی، کیا ذہن میں تھا، یہاں کیا نقشہ بنا دیا. اور ذاکر نائک جیسا کتا، ان بد مذہبوں کو شرم نہیں آتی، یہ یزیدیوں کی حمایت کرتے ہیں. یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا. توصیف رضا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا او یزیدیوں اپنی زبانیں سنبھال لو ورنہ یہ سنی تمہاری زبانیں کاٹ دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، آپ بھی باپ ہیں، کبھی اولاد کا غم دیکھو تو پتہ چلے گا. اور تم 10ویں تاریخ میں اعلیٰ حضرت پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اعلیٰ حضرت نے یہ منع کر دیا وہ منع کر دیا. ابے اعلیٰ حضرت نے تمہارے فائدے کی کہی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ یزیدیوں کے کام کرتے ہی کیوں ہو؟ ایسا موقع ہی کیوں دیتے ہو؟ تم کھیل تماشے میں لگ گئے، تم کودنے پھاگنے میں لگ گئے. یہ نہیں سوچتے کتنے غم کا دن ہے یہ عورتوں ماں بہنوں کو تکنے کا دن ہے یہ. ابے سوچو کیسا دن ہے. اللہ اللہ حسین کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. کبھی اٹھا کے دیکھو اپنے جوان بیٹے کی لاش، اگر ایک بیٹا مر جائے نا 40 دن باپ سے اٹھا نہیں جاتا، 40 دن. اور حسین کے کتنے بیٹے شہید ہو گئے، 4 بھتیجے. امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے کربلا میں اور خود کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، پورا خاندان شہید ہو گیا. تو اسے کھیل کود کا دن سمجھتا ہے؟ ابے ہونا یہ چاہیے تھا تو پوری رات عبادت کرتا اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتا اور تب تجھے بھوک لگتی، تب تجھے پتا چلتا کہ ایک دن کی بھوک میں میرا یہ حال ہو گیا ہے. 3 دن کی بھوک پیاس میں سکینہ کا کیا حال ہو گیا ہوگا، عباس کا کیا حال ہو گیا ہوگا، اللہ اللہ حسین کا کیا حال ہو گیا ہوگا. تم تو کھیل سمجھتے ہو، مذاق بنا کے رکھ دیا تم نے مسلک کا. اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کرتے ہو، دشمنوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع تم دیتے ہو اور پھر یوں کہتے ہو کہ مولوی منع کرتے ہیں. ابے ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کی خاطر اپنا سر قلم کروا دیا اور تو ڈھول بجانے میں رہ گیا. تو نے پڑھی ہے ظہر کی نماز، تو نے پڑھی عصر کی نماز، اسے تو حسینی کام کہتا. بولا مولانا غلبہ دکھائی دیتا. میں نے کہا ہاں غلبہ دکھائی دیتا ہے جب مسلمان ایک ساتھ نکلتا ہے. تو نمازوں کے لیے ایک ساتھ نکل. تو نے نہیں دیکھا عید اور بقرعید کے دن، الوداع کے دن جب مسلمان ایک ساتھ نکلتا ہے کفر کا سینہ ہل جاتا ہے، وادی کفر میں زلزلہ آ جاتا ہے، پولیس پرشاسن تمہاری سیکیورٹی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اسی طرح محرم کے دن بھی یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے مسجدوں کی طرف جاتے تو آسمان سے آواز آتی غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. اللہ بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد.
जो लिखा बिला शुबा कुरान और सुन्नत और असलाफ की रोशनी में लिखा। अगर कोई उन्हें मानने का दावा करने वाला गलत काम करता है, मुफ्ती जमील साहब क़िबला मौजूद हैं और मंदिर इस्लाम में मेरे उस्ताद हजरत मौलाना आकिब साहिब क़िबला, इनके पास मैं 2 साल पढ़ा और जो आज बरेली की सरजमीन पर रस्मियात का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हजरत अल्लामा हनीफ रजा खान साहब क़िबला, इन बुजुर्गों से जाके पूछो, वो सबके बुजुर्गों के बुजुर्ग ताजुश शरिया से जाके पूछो, वो तुम्हें हक बताएंगे, सच बताएंगे। आप नाराज हो इसकी फिक्र नहीं है, हम लोग आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्यों ढोल ताशे तुम बजाते हो। लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मेरे भाइयों, खुद कलेजे पे हाथ रख के सोचो, ढोल ताशे बजाना ये यजीदी काम है, हुसैनी काम नहीं है। सोच लो, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, बिला शुबा हुसैन के नाम के नारे लगाओ और कल दुश्मन के कलेजों को हिला के रख दो। क्या ये नारे बगैर ढोल के नहीं लग सकते? बोलो बोलो, लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? अरे नमाज पढ़ पढ़ के निकलो। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि जब बगैर नमाज पढ़ा हुआ यजीद हुसैनी, जब बगैर नमाज पढ़ा हुआ ये मेरा नौजवान नारे लगाता है या हुसैन के, तो इतना दम पैदा होता है। जब नमाज पढ़ के लगाएगा तो कितना दम पैदा होगा। हमारी भाइयों, यार देखो, सोचो ये दिन कितना बड़ा दिन है। अल्लाह मुझे गुनहगार को भी तौफीक अता फरमाए, इस दिन की कद्र करें। यार हम लोग तो सही बात ये है कि हुसैनियत से बहुत दूर निकल गए, सिर्फ हमारे पास नारा रह गया, पहचान नहीं रही है हमारे पास। यार वरना हम मुसलमान होकर मार खा जाते। आज हर कहीं हम मारे जा रहे हैं, हर कहीं पे मुसलमान। 54 मुल्कों में हुकूमतें हमारी आपकी, वैल्यू कुछ नहीं है। और सहाबा के जमाने में अरब, रूम, कैसर और किसरा पे हुकूमत थी, सिर्फ 2-4 मुल्कों पे, और दबदबे का ये आलम था कि अगर एक भी गुलाम मुस्तफा मिसाल के तौर पे भारत में रहता था, दुश्मन ये सोचता था इसे टच कर दिया तो उमर जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, उमर जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या वैल्यू हमारी आपकी? आज कोई हमारी आवाज में आवाज मिलाता है। ये सऊदिया के मुफ्ती खुद को दीन का ठेकेदार समझते हैं। पिछले दिनों अखबार में दे दिया कि रसूल करीम के मज़ार को तोड़ दिया जाए। अबे यहूदियों का काम करते हो, दीन के ठेकेदार बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम नबी के मज़ार को तोड़ने की बातें करते हो और ये पता नहीं है कि सुन्नी मुसलमान जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा, बुलंद आवाज से मसलक के अहले सुन्नत यानी के मसलक के आला हजरत के बैनर तले डंके की चोट पे कहता रहेगा, शफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक न होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों, मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खदरा तो हरियाली नहीं होती। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों समझो, बात को समझो, लंबी हो रही है। मुझे भी माबाद करबला में कुछ वाक़या सुनाने हैं। इमाम ने ये के बाद दीगर सब शहीद होते रहे, सब शहीद होते रहे। खेमे में आया, बहन ज़ैनब, वो जो मैं संदूक लेकर आया था निकालो। संदूक निकाला गया, इमाम अली मकाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब। अच्छा यार, ज़ैनब, अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, ज़ैनब का जब नाम आता है ना तो मेरी मतलब आंखें, दिल रोने लगता है। मैं बोलता हूँ, एक मरतबा ज़ैनुल हजरत ज़ैनब ने जब अपने बेटे जो थे उनके ओनो मोहम्मद, उन्हें जब कुर्बान करने के लिए भेजा तो हुसैन ने कहा था, ओ मेरी बहन, अपने बच्चों को तू क्यों शहीद कराना चाहती है? तेरे चैन है तेरी आंखों के। तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, वो बहन बहुत खुश नसीब है जिसके बेटे अपने हुसैन जैसे भाई के नाम पे कुर्बान हो जाएं। मेरा दिल कहता है उस वक्त हुसैन ने भी कहा होगा, ओ बहन, वो भाई भी बड़ा खुश नसीब है जिसे ज़ैनब जैसी बहन मिल जाए। मुसलमानों, ज़ैनब, अल्लाह अल्लाह, इसकी बहादुरी। यजीद के सामने जब खुतबा दिया था ना ज़ैनब ने, तो यजीदियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यजीद के घर की औरतें रो रही थी, यजीद पे लानत कर रही थी। ये ज़ैनब वो हैं, खुदा की कसम, कलेजे में
जान सी पैदा हो जाती है ज़ैनब का नाम सुन के। इसलिए कहता हूँ अपनी माँ बहन बेटियों से कि बच्चा पैदा हो तो नाम ऐसा मत रखो, नाम रखो तो ज़ैनब रखो। बोलो ज़ैनब रखो नाम। चाहे मैं चाहता हूँ हर घर में ज़ैनब नजर आए। ये मत सोचो कि उसकी बेटी का नाम भी ज़ैनब है, ये सोचो कि अगर तेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब है तो मेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब है। हमारी जिंदगी कुर्बान हो जाए ज़ैनब के कदमों पे। ज़ैनब के कदमों की धूल है। ज़ैनब अगर मुस्कुरा दे हमारी तरफ और अपने दस्ते शफ़क़त हमारे सर पे रख दे तो हमें दुनिया में भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है और जन्नत में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये ज़ैनब है, ज़ैनब। कितनी हिम्मत है ज़ैनब में। अरे यार हिम्मत कैसे न होती फातिमा की बेटी। सुभान ऊंचा अल्लाह, बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। ये फातिमा की बेटी हैं। ये हैदर कर्रार का खून है, फातिमा की बेटी है हजरत ज़ैनब। बहन संदूक खोलो, सुनो मेरे अब्बा की ज़ुल्फ़िकार दे दो, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की दस्तार दे दो। आपके सर पे जो दस्तार बंधी हुई थी ना वो आपने उतारी, ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दी। कहा बेटा आज के बाद मेरे जानशीन तुम हो और इस कुनबे की निगहबानी तुम करोगे। ये ज़ैनुल आबिदीन वो हैं, खुदा की कसम वाक़ई करबला के बाद किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा, किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा रोते रहते थे। लोगों ने कहा ज़ैनुल आबिदीन इतना क्यों रोते हो? कहा मैं क्या करूं, मैंने अपने माते की आंखों से सकीना के मुंह पे थप्पड़ पड़ते हुए देखे, मैंने अपने माते की आंखों से ज़ैनब की कानों से जेवरात को खींचते हुए देखा, मैंने खैमे हुसैनी को चलते हुए देखा। मेरा दुनिया में जी नहीं लगता है, काश मैं भी मैदान करबला में शहीद हो जाता। ओ लोगों, ये वो ज़ैनुल आबिदीन है जिनके मकान के पतलाने से हमेशा पानी गिरता रहता था। लोगों ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन चमासी का मौसम हो, बरसात का, तब तो समझ में आता है, आपके पतलाने से हमेशा पानी क्यों गिरता है? ज़ैनुल आबिदीन बोले मैं ऊपर बैठ जाता हूँ अपने मकान की छत पे और अपना चेहरा कर लेता हूँ करबला की तरफ, दिल कर लेता हूँ गुम्बद खजरा की तरफ, अपने अब्बा को याद करता हूँ, मैं कासिम की जवानी को याद करता हूँ, मैं अपने भाई अली अकबर को, हम लोग साथ में चलते थे, एक दूसरे की उंगली थाम के चलते थे, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे बहुत ही याद आती है। इसलिए मेरी आंख से जब आंसू बहते हैं तो पतलाने से पानी गिरने लगता है। अल्लाह अल्लाह, सोचो ये ज़ैनुल आबिदीन पता बुखार था बहुत तेज, कप आ रहे थे, अपने अब्बा से बोले ओ मेरे आका हुसैन आप कैसे जा सकते हैं, जवान बेटा मौजूद है। सोचो कैसा क़यामत खेज मंजर होगा, कैसा क़यामत खेज मंजर होगा। यही तो वजह है प्यारे, शरह अक़ाइद जैसी किताब में भी एहतियात ये कहा कि लानत न की जाए यजीद पे, मगर इन यजीदियों के जुल्म को देख के आगे जाके खुद लानतुल्लाहि अलैह कह दिया है। ऐ लोगो, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जैसे और अल्लामा इब्ने हजर मक्की जैसे और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, ताजुल फहूल और मशाइखे किछोचा, जितने भी हमारे बुजुर्गाने दीन हैं, सबका मौक़िफ़ यही है कि यजीद फासिक़ व फाजिर और उसके फिस्क़ में कोई शक नहीं, उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कान खोल करके सुनो, इमाम आली मकाम से बोले अब्बा तुम्हारे होते हुए, मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं? हुसैन ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा सुनो अभी, और ज़ैनब तुम भी सुनो, ये तो बच्चे हैं, ये तुम इनमें सबसे ज्यादा औरतों में तुम समझदार हो, और जो मर्द बच्चे जो 3 मर्द बच्चे थे, 2 बच्चे और थे, इमाम आली मकाम के एक बेटे और थे, उनका नाम था अमर इब्ने हुसैन। कहा ओ ज़ैनुल आबिदीन सुनो, अब